Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSV Physics class. So, this is lecture 1 on electrostatic potential and capacitance for your class 12 NEET and JEE question. So, okay. So, in this lecture, I will be basically describing on potential. So, you may be knowing about heat flow and water level. So, potential can be considered just as a level, so that it will decide the movement of charge from high potential टू लो. सो ये चार्ज का मूवमेंट जैसे आपका हीट ट्रांसफर. सो where there is a temperature difference, this is temperature T1, it is heating and rod, and this is a T2. So if this is T1 greater than T2, so heat will be flow from T1 to T2. So just like temperature, that is indicating that flow of heat, it is decided by the temperature. ना कि वो कितना टेम्पर यहाँ पे जितना हीट हो सकता है इसी रॉड में बहुत ज्यादा हीट कंटेंट हो, बट इसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, then from higher temperature to lower temperature heat will flow, just like water. So you have seen na. So just the container, just I am giving small example. So how potential is compared है ना. So this is a water container है ना. So this is small. So if it is water column is here and it is water is here, so this is height h है ना, this is height h2 h1. if h1 greater than h2, so इस केस में from water will flow from this higher height to lower height. देखिए, see here total water content will be more than this small column, but as height is more, so height or temperature, so just like this is there is also potential. So potential, it will decide how much in that case चार्ज विल फ्लो है ना. यहाँ पे वाटर के केस में वाटर फ्लो कर रहे थे, इसमें टोटल हीट फ्लो हो रहा था. इन दैट केस हाउ मच चार्ज विल बी फ्लो, इट इज डिसाइडेड बाय पोटेंशियल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ओके, नाउ लेट अस गिव द डेफिनेशन ऑफ दिस पोटेंशियल. So definition is, so work done है ना, work done to bring unit charge from infinity to that point है ना, जो है मान लीजिए इस पॉइंट में लाने के लिए यूनिट चार्ज 1 यूनिट, दिस यूनिट चार्ज इंफिनिटी से, दिस इज इंफिनिटी से दैट पॉइंट में लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज योर पोटेंशियल है ना. सो वर्क डन विल बी जो है Q into V. So work done is Q into V, means work done units, if it is unit charge then work done equal to, if Q equal to 1, so work done equal to V. So for unit charge, work done from to bring a charge from infinity to that point V is called potential. So this is the definition. So this is important, W equal to Q into V है ना. Now the where the potential and everything, battery, you know now the Count Alexander Volta. So Volta का जो उन्होंने फर्स्ट जो वोल्टाइक सेल बनाए थे ना, 150 डिफरेंट पेयर्स ऑफ जो है डिफरेंट पेयर्स ऑफ मेटल प्लेट एंड द मीन टाइम वेटेड जो है पेपर और ये डाले थे उन्होंने, जो है वेटेड जो है गिला हुआ ना, मॉइस्चर कंटेंट वेटेड ग्लास, और जो है ग्लास नहीं, पेपर बॉक्स एंड समथिंग वुडन बॉक्स है ना, पेपर और वुडन मटेरियल से ये हमने उन्होंने सेल बनाए थे ना, वहां से आपका पोटेंशियल. सो बेसिकली नॉट ओनली पोटेंशियल इम्पोर्टेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज इम्पोर्टेंट. हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, सो दैट विल डिसाइड द वेयर द हाउ मच चार्ज विल फ्लो देयर. सो व्हाट इज द यूनिट, you know unit is 1 volt. So definition is 1 volt is the 1 joule work done per coulomb.
this is equal to 1 volt. So 1 coulomb charge, so volt definition of voltage is, so to bring 1 coulomb charge from infinity to that point, work done is 1 joule. So 1 joule is 10 to the power 7 arg, and 1 coulomb in EDECU is 3 into 10 to the power 9 जो है 10 to the power 9 is ESU, है ना. So 1 ESU equal to 1 ESU equal to जो है इधर 300. So in electrostatic unit जो है 1 is equal to 300 volt, है ना. So ये दिस इज द यूनिट, CGS यूनिट एंड जो है SI यूनिट का जो कन्वर्सन है ना. सो देन आई विल बी कंसीडरिंग वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू some reference. So what is the reference? Reference is earth potential. Earth potential. So earth potential is, earth is a big conductor. So lots of electron is there. So lots of sea of electron. That's why this sign is just your ground. So our earth is lots of electron, big conductor, है ना. So just like the level of sea. So any height is determined with respect to sea level. So if height is determined with respect to sea level, so potential also determined if it is positive with respect to earth potential. Earth potential, it is zero potential माना जाता है, and negative it is with respect to earth potential. So this is the reference potential, है ना. जैसे sea level is compared with height is compared with sea level, just your the potential is also compared with the potential of earth, that is considered as a zero potential. Okay. So now आपका जो है electric charge, electric field, last lecture we have seen how much electric field for a point charge, है ना, ये आपने देखे थे. So point for a point charge जो है आपका electric field कितना होता है. So electric field, this is if a point charge Q, so electric field equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q over R square. So this is the electric field. So let's see, this is the electric field, है ना. ये electric field ये चारों तरफ है electric field. This is the electric field. This is the electric field. Now to bring a unit charge, to bring a unit charge from infinity to point, this is R, and from infinity to infinity से ये R point तक लाने में उसका वर्क डन कितना होता है. So वर्क डन equal to F dr, F force due to electric force and dr, है ना. So force due to electric field, how much it is? Q by 4 pi epsilon 0 R square, है ना, और इन जो है dr. So electric field is here, work done is here. So that's why it is negative. So work done, this is the 4 Q by 4, and this is unit charge. This is electric field into, so F equal to Q into E. This is unit charge 1. So electric force due to electric field is Q into E, है ना. So Q here, Q जो point charge जो है ना, जो point, this is the point charge. So point charge के लिए this is the force. So ये आपका force point charge के लिए, है ना. So this force into dr. So जो है infinity to r, ये अब ये इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है. So this is equal to Q by 4 pi epsilon 0 r. So this is unit charge infinity से वहां तक लाने में जितना वर्क डन is, that is called potential. So V equal to Q by 4 pi epsilon 0 r. Okay. So now, so in CGS unit, this is V equal to only Q by r. 1 by 4 pi epsilon 0 equal to जो है 1 माना जाता है. So now let's discuss with. So clearly we are seeing Q equal to जो है
E equal to Q by 4 pi epsilon 0 r square and V equal to Q by 4 pi epsilon 0 r. So in this definition can you write जो है V equal to और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जो है माइनस डीवी डी आर लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है माइनस जो डीवी डी आर डेरिवेटिव करेंगे सो ये आएगा। सो ये कहां से आएगा? सो दिस इज जो है यहां से इन दोनों इक्वेशन से देखिए इसमें यहां से आप लिख सकते हो और अदरवाइज you can prove also. So this is if you there is a potential difference VA and this is a VB and this is the electric field direction. So basically this is high potential. So you are bringing a charge from this is if you call this is your D distance. So bring a charge unit charge from here to here. Work done will be V into VB जो है आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इंटू ये जो है D है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो आपका यूनिट चार्ज तो फोर्स इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू आर ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। सो व्हाट इज द फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q दैट यूनिट चार्ज Q U ये फोर्स इंटू वर्क डन इज D है ना। दैट इज योर पोटेंशियल है ना। दैट इज योर पोटेंशियल। यू आर ये जो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और यू आर ब्रिंगिंग दिस दैट्स व्हाई नेगेटिव है ना। सो E इक्वल टू V ओवर D V ओवर D जस्ट E इक्वल टू जो है dV dr मतलब दिस इज डिस्टेंस है ना। D इज द डिस्टेंस है ना। So V over distance, V over ये R dr is the distance है ना। So that's why electric field is the this is vector quantity, but potential is not a vector quantity. Now, so you know the potential inside. So if your this is spherical conductor, इसमें केस में आप इसमें इसके जस्ट आउटसाइड जो है आप यहाँ पर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे ना Gauss's theorem. So electric field inside this uniformly charged sphere, uniformly charged hollow sphere इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर देयर इज नो चार्ज कंटेंट क्योंकि E डॉट ds इक्वल टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। सो इधर Q एनक्लोज इधर अगर ये ले लेंगे गॉसियन सरफेस ले लेंगे Q एनक्लोज इज 0। So E is 0 inside spherical cell. So E is 0. E is 0 means voltage is derivative of voltage is 0. So V is constant. So voltage ये डेरिवेटिव अगर आपने पढ़े हैं so this will be very much simple है ना। So constant का डेरिवेटिव is 0 ना। So V is constant. So potential is constant. Potential is constant. Understand the phenomena? So इस टाइप का जो है प्रॉब्लम आता है, इस टाइप का प्रॉब्लम आती रहता है। सो आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। सो नाउ अभी पोटेंशियल जो है हम कैलकुलेट करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं ना। व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड फोर्स जो है आपका टोटल फोर्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। सो आप स्लाइटली हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स मतलब टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। सो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड इसमें क्या होता है आपका जो है ग्रेविटेशनल फील्ड का भी एग्जांपल दे देते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है? यू आर वेटिंग ए लिफ्ट। सो मतलब यू आर वेटिंग ए वेट है ना। हियर इट इज टोटल जो है mgh है ना। नो जो आप यहाँ पर उठाने के बाद इसका जो टोटल जो है एनर्जी जो है यहाँ पे एज ए पोटेंशियल एनर्जी इट इज स्टोर्ड हियर। व्हेन इट इज you just fall it then it will gain kinetic energy है ना।
So total here it will be totally kinetic energy. Now no potential energy at the ground. But at any time you can see kinetic energy and the potential energy is a constant. Just like if this is the gravitational field ऐसा ड्रॉ किया, so आप किसी भी वेट को यू इसी हाइट में ये किए, मान लीजिए दिस इज योर पाथ 1, दिस इज योर पाथ 2, सो दिस इज पोजीशन जो है ये ग्राउंड पोजीशन से आप इसी हाइट में एच हाइट में उठा रहे हैं. सो वेदर यू आर टेकिंग you are doing work done by holding your ball weight and moving in this in path 1, this is path 2, this is not important. So work done जो है f dot dr, whether it is for path 1 f dot dr for path 1 equal to f dot dr for path 2. सो पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब आप किसी भी पथ में जाइए बट टोटल हाइट इज इंपोर्टेंट. आप इसी हाइट में लेके जाइए, सीधा ऊपर लेके जाइए, टोटल जो है एनर्जी वही रहेगा. सो आप किसी भी पाथ में उसको लेके जाइए, जो है टोटल वर्क डन इज जो है ये सेम होगा. सो दिस दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव. सो ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से बताएंगे, है ना. नाउ पोटेंशियल ड्यू टू जो है आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वो कैलकुलेट करेंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हाउ मच, सो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने अब पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो लेट्स कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल हियर, है ना. अब छोटा सा इधर ड्रॉ कर देता हूं, है ना. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू, दिस इज योर प्लस क्यू एंड यू आर कैलकुलेटिंग ए पोटेंशियल हियर. दिस इज जो है पी पॉइंट, है ना. दिस इज ए, दिस इज बी, है ना. सो ओके, सो पोटेंशियल एज ए वी पी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू, है ना. सो ये क्या होगा आपका पोटेंशियल ऑफ, सो दिस इज इक्वल टू जो है ये दोनों में क्या चार्ज है, ये ट्वाइस ए से आपका डिफरेंस, है ना. सो दिस विल बी जो है क्यू चार्ज जो है माइनस क्यू के यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ठीक है, दिस इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0. सो प्लस के लिए क्या होगा 1 बाई पी बी, माइनस के लिए क्या होगा 1 ओवर पी ए. सो दिस इज योर पोटेंशियल एट, लिख सकते हैं ना, ये माइनस को उधर लेके गए, है ना. ये जो है पी ए. नाउ इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करते हैं, ये डॉट 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 करके आप इसके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आप. सो ये एंगल को हम थीटा डिग्री में ये मानते हैं, है ना. सो और ये डिस्टेंस जो है आर, है ना. ये आर डिस्टेंस में, ये डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस में ये है. अब ये डिस्टेंस कितना है ए, सो ये डिस्टेंस कितना होगा, आप इसको मान देते हैं डी, इसको मान से सी, है ना. सो पी डी इक्वल टू कितना होगा, पी डी इक्वल टू दिस इज आर प्लस ए कॉस थीटा एंड पी सी इक्वल टू आर माइनस ए कॉस थीटा. देख लीजिए, है ना. ये जो एरिया है ये ए, दिस इज योर ए, क्योंकि ट्वाइस है इसका लेंथ है, दिस इज ए एंड दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री. सो दिस डिस्टेंस इज ए कॉस थीटा, है ना. दिस इज ए कॉस थीटा एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस विल बी, ये आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दिस इज ए रे. सो दिस डिस्टेंस इज ए कॉस थीटा, है ना. सो यहाँ का पी सी इक्वल टू आर माइनस ए कॉस थीटा. सो लॉन्ग डिस्टेंस में व्हेन आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, तब हम क्या बोल सकते हैं, पी ए नियरली इक्वल टू पी डी एंड पी बी नियरली इक्वल टू पी सी. ये क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिक देखिए.
सो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जहां पर आपका आर बहुत बड़ा है, डाइपोल बहुत छोटा है, मतलब इतना है, डाइपोल इतना सा बिल्कुल ही। सो इस डिस्टेंस में ये जो है डिस्टेंस से बराबर हो जाएगा, है ना। व्हेन यू आर सीइंग फ्रॉम मून, आपका जो है दोनों डिस्टेंस, और आप दोनों 2 मीटर पे खड़े हैं, सो 2 मीटर इज नथिंग ना। आप चांद से देख रहे हो, यहाँ पे आपका दो दोस्त खड़े हैं, है ना। सो ये 2 मीटर डिस्टेंस में है। सो चांद से जो ये डिस्टेंस है 2 मीटर, बिल्कुल ही एकदम जो है लग रहा है एकदम लाइन में है ना, जस्ट लाइक योर जो है एकदम पैरेलल जैसे लाइन में है ना। सो इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। सो पी डी, सो पी डी को इधर पुट कर दीजिए। सो पी बी की जगह में जो है, सो पी ए जो है पी डी, और पी सी, पी बी इज पी सी। सो दिस इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 जो है 1 पी वी क्या है, पी वी को पी सी लिख सकते हो, एंड पी सी इज आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 पी ए, पी ए को पी डी लिख सकते हो, सो आर प्लस ए कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0, यहाँ पे क्या होगा, ए कॉस थीटा, सो ट्वाइस ए कॉस थीटा ओवर जो है इसका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। सो क्यू इंटू ट्वाइस, आप थोड़ा इसको अभी थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ, है ना। सो पी वोल्टेज, पी जो है मतलब पोटेंशियल जो है ना, क्यू बाई 4π, अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यू बाई 4πε0, यहाँ पे क्या है, ट्वाइस ए कॉस थीटा ओवर जो है आर स्क्वायर लिख रहे हो, क्योंकि आर जब ए से, व्हेन आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, तो आप उसको ये वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना। नाउ इस कंडीशन पे, so q into twice a is your dipole moment, so vp equal to q into twice a जो है p cos theta by 4πε0 r square, है ना। so potential due to dipole at any point जो है at any point angle theta, ये r डिस्टेंस पे ये आपका डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, सो इसका पोटेंशियल कितना है, Vp इक्वल टू P cos थीटा ओवर r स्क्वायर। नाउ टू इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस एट व्हेन इट इज एट 0 डिग्री और 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब ये डाइपोल की वजह से आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, एट बाइसेक्टर मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कितना होगा पोटेंशियल, Vp इक्वल टू 90। सो इसका डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बराबर पोटेंशियल इज 0, ओके। अब थीटा और इसका जो एक्सियल डिस्टेंस मतलब थीटा जब ये इसका 0 मतलब 0 और पाई मतलब ये वाला एक्सिस बराबर, तो उसी केस में क्या होगा, ये माइनस होगा या 1 होगा, पी वाई 4πε0 r स्क्वायर, है ना, ये Vp, ठीक है। सो अगर ये आपको इफ एनी क्वेश्चन इज कमिंग वेदर पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल इज 0, सो ये आपका प्रूफ, ठीक है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस एट व्हिच सरफेस द पोटेंशियल is constant at everywhere, means just like if this is your positive charge, this is your negative charge, है ना। so electric field lines will be there, है ना। so if you consider a surface, है ना, so इस टाइप का अगर surface consider करेंगे perpendicular to this field lines, so this is your field lines, है ना। so field lines जैसे डिस्कस किया था ना वहां पे, so field इसका perpendicular distance जो है यहाँ पे जो potential it will be constant, potential is कांस्टेंट, है ना। सो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव के लिए कैसे ड्रॉ कर सकते हो, पॉजिटिव, सो दिस इज ए सर्कुलर सरफेस, है ना, दिस इज ए कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फेस। सो यहां से जो है सब डिस्टेंस में जो है ये इस डिस्टेंस में पोटेंशियल सेम ये रेडियस में ये पोटेंशियल सेम, सो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि दिस इज q बाई 4πε0 1/r पोटेंशियल इक्वल, है ना, दिस इज q
So q potential so 1 upon r, so when r radius is constant means this surface is equipotential. Now field line कहाँ रहता है आपका, so इसका field line से आपने ड्रॉ किए, तो field line will be for positive it will be going out, it will be going out, ऐसा आपने ड्रॉ किए थे ना. So here you are seeing field lines are perpendicular, field lines are perpendicular to the equipotential surface. देखिए यहाँ पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ किए थे, सो फील्ड लाइंस आर इक्वी जो है परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. यहाँ पे भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब फील्ड लाइन आप ड्रॉ करोगे यहाँ से तो सीधा निकल जाते हैं. सो दिस ऑल आर परपेंडिकुलर टू दिस, ये परपेंडिकुलर है ना, दिस इज इफ दिस इज योर पोटेंशियल, सो दिस इज द परपेंडिकुलर है ना, दिस इज 90 डिग्री. ओके, अब इक्विपोटेंशियल मींस नो वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना. So there is no work done moving charge on equipotential surface, क्योंकि you know work done equal to q into v. अगर v is constant, so आपका जो है q into va minus va सेम पोटेंशियल होगा, सो वर्क डन कितना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में. मान लीजिए ये मतलब ये जो b पॉइंट में अगर va इक्वल टू vb है ना, सो ये क्या होगा आपका 0. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपका वर्क डन विल बी 0, है ना, W इक्वल टू Q इंटू V, है ना. नाउ अब एक चीज हम मानते हैं, फील्ड लाइंस आर नॉट, सी फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना. ये कंसीडर से हमने पहले अज्यूम कर लिया है ना, बट उसको प्रूव करते हैं. सो इफ योर दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, सो आप जो है इक्विपोटेंशियल ये पोटेंशियल सरफेस दिस इज मतलब एक्चुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होना चाहिए था. ये मान लीजिए यहाँ पे चार्ज क्यू है, बट लेट कंसीडर फील्ड लाइंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज हियर नॉट ऑन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ओके, so there is a, so this is a point A and this is a point B. So now the tangential component is E and this angle is जो है आपका थीटा, so E cos थीटा, है ना. सो ई कॉस थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो है आपका चार्ज, सो टोटल फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई. सो क्यू मान लीजिए क्यू इंटू इधर इसका ई कॉस थीटा एंड ए टू बी, है ना, ए टू बी इज द डिस्टेंस जो है ए बी मान लेते हैं ए बी. सो दिस इज योर वर्क डन, अंडरस्टूड. फोर्स टोटल फोर्स इनटू this is your force, है ना, this is your force and distance, so F into R work done. R मतलब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में you are moving a q charge from A position to B position, so this is distance AB and आपका जो है force is how much is q into E, but here E is basically the tangential component जो है वही component, this component is actually acting on this q charge, so q this force, but on equipotential surface work done is 0, q into v, है ना, v is constant if this is equipotential surface, so v जो है work done is 0, so this will be 0. so AB, so what, फिर cos theta equal to 0 and theta equal to 90 degree. So this theta will be just, this is not a this theta, this theta will be actually this direction. So there would not be any ये tangential component. So if this is equipotential surface, electric field line will be perpendicular to this direction. So this is the proof of field lines are perpendicular to the equipotential surface. Okay. Now the next point जो है third point, see the point. So two equipotential surface doesn't cross each other. Two equipotential surface doesn't cross each other. So let's see, this is equipotential surface and this is also equipotential surface. Just assume this is a cross point is here, है ना. So electric field will be for this point, electric field will be for a surface, this surface, है ना, ये वाला surface के लिए, ये वाला surface के लिए electric field का direction will be perpendicular direction, है ना. This is electric field for ये जो सरफेस जो है S1, सो ये S1 है ना,
और दिस इज S2। सो इसके लिए जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिस विल बी ES2। देखिए, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट फ्रॉम 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 प्रॉपर्टी ऑफ 1 है ना। सो एट एनी पॉइंट देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। सो साइमल्टेनियसली एट एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसा हो नहीं सकता। सो दिस कुड नॉट बी हैपन। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस डजंट क्रॉस ईच अदर। ओके, सो दिस इज द प्रूफ। ठीक है, पढ़ते रहिए, है ना।